So as we were discussing the chapter gravitation, and in yesterday's class we discussed about the equations of motion for freely falling bodies and some important points, and as well as we discussed a numerical question. Now in today's class we are going to continue that topic further with doing some more numericals. So let's get started. The question is, when a ball is thrown vertically upwards, that is हमने एक बॉल ली है, उसको हमने वर्टिकली ऊपर फेंका है, यानी कि वो जो बॉल है हमने उसे ग्राउंड से दूर किया, दैट इज वी हैव थ्रोन इट अपवर्ड, राइट। इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर। बेसिकली जो बॉल है हमने जब उसको ऊपर फेंका तो वो 19.6 मीटर उसमें कवर किया। नाउ बेसिकली दिस डिस्टेंस इज द हाइट, that is 19.6 meter. This is the height that the ball covers when it is thrown vertically upward, that is 19.6 meter. Now find u, that is the initial velocity, and time taken by the ball to reach the highest point. Now we need to find out two things, that is time and initial velocity, right? So first let's try to find out initial velocity. Now basically it is given to us that the height of the object is 19.6 meter and the object is thrown vertically upward. If we are throwing the object vertically upward, then we know that gravity, it would be minus 9.8 meter per second square. As we discussed in the yesterday's class that if we throw up an object or it comes down, then the gravity is positive, and if we throw an object vertically upward, then its gravity is retarded. So the gravity is minus 9.8 meter per second square. And in the second point we discussed that if an object it is thrown vertically upward, then its final velocity is 0. That is, अगर हम किसी बॉडी या फिर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, दैट इज वर्टिकली अपवर्ड, तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो ये दोनों हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे उसके हिसाब से हमने लिखा, वी आर गिवन द हाइट एंड वी नीड टू फाइंड आउट द टाइम एज वेल एज द इनिशियल वेलोसिटी. नाउ वी विल अप्लाई द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज. द थर्ड इक्वेशन इज v square equals to u square plus 2gh. Right? This is the formula, that is v square equals to u square plus 2gh. Now in this we are going to put the value so that we can get the value of u. Now v is given to us as, basically v is 0, so 0 square equals to u ka square plus 2 into g is minus 9.8 into में h, that is 19.6. तो ये हमने जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, दैट इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, उसे यूज़ किया क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी हमें दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है, और ग्रेविटी वी आर गिवन एंड हाइट ऑल्सो वी आर गिवन. तो हमें इस वाली इक्वेशन के हिसाब से सारी चीज़ें दी हुई थी एंड वी वुड बी कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी हमें 0 दी हुई थी, इनिशियल वेलोसिटी वी नीड टू फाइंड आउट, एंड 2 into gravity, that is negative or retarded, that is minus 9.8 into 19.6. So if I transfer this here, then the minus sign will get converted into plus, so it will become 19.6 into 19.6 equals to u square. बेसिकली ये माइनस की टर्म आती है, अगर मैं इस माइनस को यहाँ से हटाकर यहाँ पे कर दूँ, बिकॉज दे ऑल आर इन मल्टीप्लीकेशन, सो दिस बिकम्स u स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6. अभी जो माइनस वाली टर्म थी इसे मैं इधर की साइड ले आई और 2 इंटू 9.8 कर दिया, सो दिस बिकम्स 19.6 इंटू 19.6 इक्वल्स टू u स्क्वायर. नाउ कैन आई राइट दिस एज 19.6 का होल स्क्वायर is equals to u square? I can write, so square will get cancelled and our initial velocity comes as 19.6 meter per second.
यानी कि अगर हम एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो वो 19.6 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी व्हेन इट्स इनिशियल वेलोसिटी वुड बी 19.6 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, यू मे नोट इट डाउन कि हमने बेसिकली इसमें कैसे निकाला। हमें हाइट दी हुई थी, ग्रेविटी और फाइनल वेलोसिटी हमने एज्यूम की ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास, और हमें टाइम और फाइनल वेलोसिटी निकालनी, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी थी। हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई जिसको सॉल्व करके हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, दैट इज 19.6 मीटर पर सेकेंड। Now let us see the second part of the question, which is asking us to calculate the time taken by the ball to reach the highest point. Now to calculate the time taken, basically we will obviously be using any one of the equations of motion. Third equation we use, that is v square equals to u square plus 2gh. That equation we cannot use because in that t is not given. Whereas in the first equation we are given v is equals to u plus gt, right? So this equation we can use to calculate time, or even you can use the second equation, that is h is equals to ut plus half gt square. So you can use any of these, any of the both from these both equations of motion for freely falling bodies. But if you see, if you will use this equation, then it would become more easy for you to calculate t, because here you are having t here as well and you are having t here as well. So you need to take t common and then solve. So it would be more lengthier process. So we would be going for this equation, v is equals to u plus gt. So now let us put the values. V is given to us as 0. U we calculated, it is 19.6, and g is given to us as minus 9.8 into t. So this is given to us. When I will take it here, it will become minus 19.6 upon minus 9.8 is equals to t. Minus minus cancel and this will become 2. So t comes 2 seconds. That is the time taken by the ball to reach the highest point is 2 seconds. So this was from the first equation of motion for freely falling bodies. Now let us consider that how can we solve this from the second equation. H is given to us as, let me write it here small. H is given to us as 19.6. U is given to us again as 19.6. Sorry, first let us take t common. If we take t common, it becomes u plus half of gt. So u becomes 19.6 plus half of 9.8 minus into t. So this becomes 19.6 is equals to t bracket 19.6 plus half of minus 9.8 into 2. So if I calculate, this will become 1 upon t is equals to, like I bring t here and 19.6 there. So it will become 19.6 minus 4.9 t upon 19.6. This will become, like मैंने 19.6 में डिवाइड में ले गई तो 19.6 मैंने 2 को 9.8 से डिवाइड किया तो माइनस 4.9 की. सो दिस बिकम्स, अब आप इसे फर्दर सॉल्व करते देन यू वुड गेट द आंसर एज t 2 seconds. So you can see this is a more lengthy or cumbersome process, whereas this is very simple. So I prefer using the first equation of motion for calculating the time. So हमने दोनों वैल्यूज निकाली. U come out, that is initial velocity, it come out to be 19.6 meter per second, whereas the time taken by the ball to reach the highest point is 2 seconds. So this was the question. Now the next question. So the next question is asking us, a ball is thrown up, that is we were having a ball जिसको हमने vertically upward throw किया है. So the ball is thrown upward
विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उस बॉल को हमने अपवर्ड थ्रो किया विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड. हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल. नाउ वी नीड टू टेल कि जो वो बॉल है वो कितनी हाइट कवर करेगी बिफोर इट बिगिंस टू फॉल. तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है. सबसे पहले भी हमें क्या निकालना है, हाइट वी नीड टू कैलकुलेट, राइट. हमें निकालनी है हाइट ऑफ द बॉल. सेकेंडली वी आर गिवन दैट द बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, यानी कि अगर हमने बॉल को ऊपर फेंका है तो उस केस में दो चीज़ें होंगी. द फर्स्ट इज gravity would be retarded, that is minus 9.8 meter per second square. And the third thing that would happen is अगर हम एक बॉल को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं तो उस केस में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो. एंड वी आर गिवन दैट वी थ्रो दैट बॉल विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो जो बॉल है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकेंड, राइट. तो ये हमने इंफॉर्मेशन निकाली. हमें हाइट निकालनी थी बॉल की, और ये जो लाइन दी हुई थी बॉल इज थ्रोन अप, इससे हमने दो चीज़ें निकाली. द फर्स्ट इज अगर हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो उस केस में उसकी ग्रेविटी रिटार्डेड, दैट इज माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड द सेकेंड उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी दैट वुड बी ज़ीरो. और हमें दिया हुआ है कि उस बॉल को हमने स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द हाइट. हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं. फर्स्ट इज v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी. अब इसमें हमें टाइम तो दिया ही हुआ, यानी कि वी कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन में भी हमारा टाइम होगा, दैट इज h इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो टाइम हमें नहीं दिया, देन वी कैन नॉट यूज द सेकेंड इक्वेशन एज वेल. सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज टू यूज द थर्ड इक्वेशन विच इज v square is equals to u square plus 2gh. So we would be using this equation, that is v square equals to u square plus 2gh. अब हमने जो वैल्यूज निकाली हैं इनको हम डायरेक्टली पुट कर देंगे इक्वेशन में. v is given to us as 0, so 0 का स्क्वायर is equals to u, that is 15 का स्क्वायर plus 2 into minus 9.8 इंटू में h, राइट. तो अब मैं 15 को इधर ले आती हूँ दिस विल, या फिर 15 के स्क्वायर को, सो इट विल बिकम माइनस 225 अपॉन में माइनस 9.8 इंटू 2 इज इक्वल्स टू द हाइट, राइट. ये मेरा 0 था तो दिस बिकम 0 का स्क्वायर 0, 15 का स्क्वायर इज 225, दिस वॉज प्लस. अगर मैं इसे इधर ट्रांसपोज करती हूँ देन इट बिकम्स माइनस 225, और यहाँ पे मेरे पास था 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू हाइट, तो ये मल्टीप्लाई में थे, मैं इसे डिवाइड में ले गई 9.8 इंटू 2 और ऊपर 225. सो माइनस माइनस कैंसिल एंड यू रिमूव द जीरो हियर, दिस बिकम्स दिस 9.98 इंटू 2 डिवाइड और 2250 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 2 इज इक्वल्स टू द हाइट. सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू. H will come out to be, let me calculate it, to say me if we cut this 1, 1, 2, 5 and 17, it will come around 11 approximately something, 11 point something would be the answer. I think so 11.4 around something would be the answer. So the height that it will cover, or the maximum height that the ball will cover would be something 11.4 meter before it starts to fall down. Now let us see another question. A cricket ball is dropped from a height of 20 meter, यानी कि हमारे पास एक क्रिकेट बॉल थी जिसको हमने एक 20 मीटर हाइट से नीचे फेंका. So we are given, let us write that what all is given to us. हाइट इज़ गिवन टू अस एज 20 मीटर. जो क्रिकेट बॉल थी हमने उसको 20 मीटर की हाइट से नीचे फेंका, सो द हाइट इज़ 20 मीटर. अब ये जो लाइन है नीचे फेंका, दैट इज़ द बॉल इज़ थ्रोन डाउनवर्ड. अगर हमने बॉल को डाउनवर्ड थ्रो किया है तो उस केस में
हमारी ग्रेविटी क्या होगी, पॉजिटिव, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड द थर्ड केस, अगर हम बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो करते हैं तो उस केस में हमारी इनिशियल वेलोसिटी इज 0। सो जो ये हमें लाइन दी हुई थी कि हाइट इज 20 मीटर और हमने बॉल को नीचे फेंका, दैट इज इट इज ड्रॉप, उससे हमने ये दो कंक्लूजन्स निकाले। द ग्रेविटी वुड बी पॉजिटिव, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड द इनिशियल वेलोसिटी वुड बी 0 और 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये तीन इंफॉर्मेशन हमें फर्स्ट लाइन को पढ़ के निकल आई हमारे पास। अब हम पढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, यानी कि जो वो बॉल है उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की फॉल करने के साथ, अब हमें उसकी स्पीड बतानी है जब वो ग्राउंड को हिट करेगी, यानी कि हमें उस बॉल की फाइनल वेलोसिटी बतानी है इन द फर्स्ट पार्ट। सो इन द फर्स्ट पार्ट वी नीड टू टेल दैट व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, दैट इज जब वो बॉल ग्राउंड को टच करेगी तो तब उस बॉल की वेलोसिटी या फिर स्पीड कितनी होगी। देन इन द फर्स्ट केस वी नीड टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी। एंड द सेकेंड पार्ट इज आस्किंग अस कैलकुलेट द टाइम टेकन टू फॉल, यानी कि वो जो बॉल है वो 20 मीटर का जो डिस्टेंस है या जो हाइट है उसको कवर करने में कितना टाइम लेती है। सो द सेकेंड पार्ट इज आस्किंग अस टू कैलकुलेट द टाइम। सो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है। हाइट इज गिवन टू अस 20 मीटर, ग्रेविटी पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी वी नीड टू कैलकुलेट एज वेल एज द टाइम। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, दैट इज कैलकुलेटिंग द फाइनल वेलोसिटी। सो फॉर कैलकुलेटिंग द फाइनल वेलोसिटी वी वुड बी यूजिंग द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच सेज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, यानी कि जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी दैट वुड बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ग्रेविटी इनटू हाइट। सो we need to calculate v square, it would be 0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ g that is 9.8 into में height that is 20 meter, right? So you when you will solve it, it would come v square is equals to 19.6 into 20. You can remove this 0, this will become 10, cancel it out. So it will become v square is equals to 2, 1 carry 89, 1 carry 392. So if you will do this, then the final velocity will come out to be root 392 meter per second. So this would be the answer, that is the final velocity would be root 392 meter per second. So हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, दैट इज v square equals to u square plus 2gh। हमने इसमें वैल्यूज पुट की, सो आवर फाइनल वेलोसिटी केम आउट टू बी रूट 392 मीटर पर सेकेंड। नाउ द सेकेंड केस दैट इज वी नीड टू कैलकुलेट द टाइम। सो फॉर टाइम वी ऑलवेज प्रेफर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज v इक्वल्स टू u प्लस gt। v we calculated, that is root 392. So root 392 is equals to u, that is 0 plus 9.8 into t. So t would come out to be root 392 divided by 9.8 seconds. So you can solve it further. So हमारा first part that is जो हमें velocity निकाली थी, final velocity, it came out to be root 392 meter per second. And second part that is time, ये हमारा हमने first equation of motion लगाई and it came out to be root 392 upon 9.8 seconds. And one more thing I would end with कि अगर आपको क्वेश्चन में ग्रेविटी की वैल्यू नहीं दी हुई है, यू विल ऑलवेज टेक 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है लाइक यू हैव टू टेक द ग्रेविटी एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एनी अदर वैल्यू, देन यू नीड टू यूज ओनली दैट वैल्यू। इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू नहीं दी हुई थी ग्रेविटी की, सो वी एज्यूम्ड इट टू बी 9.8। अगर हमें यहाँ पे दिया होता ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
तो हम इसी वैल्यू को लेते हैं, ना कि इस वैल्यू को। तो मैं यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू भी 10 डाल दी और फिर 10 वैल्यू ग्रेविटी की डाल के ही मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूँगी। सो इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, एज्यूम द ग्रेविटी टू बी 9.8 meter per second square. And if the question specifies that what you need to take the value, then you just need to stick to that value. So do like our videos and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos. Thank you.